Okay, so I hope my screen is visible to all. Yes, sir. Okay, so this is the case study that we are going to solve today on conditional if or nested if. Basically, nested if was there before this 2365 had come. We had to apply formula into formula to complete the if function if there are multiple conditions. But now it is not needed because we have what we have is ifs function ifs. So ifs is used when you have more than one condition. Okay, so today we are going to solve this using the multiple if, or you can say nested if function. And before I can, like, I'll share, I'll just, there are more people waiting, I'll just add them and then we can start. Okay, now you are seeing this data, just read the condition one more time so that you are aware what you have to do, and then quickly we'll start this session. Okay, so I'm just going. You can just form a logic in your mind like how we have to go about it, and then we shall start. Okay, I'm giving you 1 minute, just think about it how we can begin with this, and then you will guide me, I'll build up the formula. Okay, so what you can see is the case study. Okay, I'm reading it out so that it's clear what we have to do. So if profit is above 1 lakh, okay, then incentive will be 10% of profit. If profit is between 50,000 and 1 lakh, then incentive will be 7% of the profit. If the profit is between 20,000 and 49,999, then the incentive will be 5% of profit. If the profit is between 5,000 and 19,000, then the incentive will be 2% of profit, otherwise no incentive. So what we have done yesterday is we had just written this case study into a form of a simpler equation where we have mentioned that if the profit is greater than 1 lakh, the incentive will be 10%. If the profit is between 50,000 and less than 1 lakh, then it will be 7. If it is more than 20 and less than 50, then it will be 5. And if it is between 5 and 20, then it should be 2%. If it is less than 5, then there will be no incentive. Okay. So basically, we have to calculate the incentive based on the profit, Amount of profit. amount of profit. Okay. So all these columns doesn't matter. All these columns are not useful as such. Only what we need is the profit and the incentive. So I'm hiding all this. Okay. So that we can focus on what is required. So this is the condition that is there with us, and we have to fill the formula inside the incentive cell based on the profit, right? So how do I start? So suppose I write if function. So if function will give me the option to put only one logical test. So if cannot be used here. So and there is no point using if can the if. So if we have to use if can the if, then what we have to do is we have to give multiple conditions. For example, so what will So be the first? we have to give four conditions of I by way of or, and then we have to close the brackets four times or something like that. Exactly, yes. So we have to give four conditions. So if I have to start with this, what we can do is we will see the profit. We will select this because we have to compare the profit. So profit if greater than 1 lakh. Greater Okay. than yeah. So I will say greater than 1 lakh, comma. Comma, comma. Then incentive. Incentive will be 10% of what? 10% of L5. L5 salary. Okay.
So we will say L5 का 10%. ठीक है, and what is L5? L5 we have written. Sorry, L5 is profit only, right? So incentive will be 10% of profit. So if the profit is 1 lakh or more, then the incentive will be 10% of profit, right? or else zero. Then we have to build the other conditions. Exactly. So now we cannot put zero or some other thing because now we have to test. If this condition is not matched, then test the next condition. So I will put one more if then. If this condition is not matched, then try for the next condition. Check the next condition. What is the next condition now? Again, the next condition we'll have to check L5. That is the profit, right? Greater than equal Greater than equal to what? 50,000? 50,000. Yeah. 50,000. So if it is not greater than 1 lakh, then the next equation that we have to develop is that if the profit is more than or equal to 50,000, then what should be the answer? L5 multiplied by 7%. L5 multiplied by 7%. Okay, L5. L5. sorry. L5 multiplied by 7%. Correct. Okay. Now, what if this is also not true? That means the profit is not greater than 1 lakh and not greater than 50,000. So That third means we are now back to the third equation. So third equation we have to check whether it is more than 20 or and 20. less than 50. Yeah, so it is more than 20. So less than 50 will automatically taken care I of. Yeah, automatically taken care by 5. earlier. So L5 is greater than or equal to 20,000, I can say. Comma. Then what should be done? L5 multiplied by 5%. L5 multiplied by 5%. Very good. And then if this Last is also not true, then again check for if L5 is greater than or equal to 5,000. less than equal. Less than equal to. Sorry, greater than equal to 5. Yeah, greater than equal to 5,000. Yeah. Okay, less than greater than equal to 5,000, then L5 should be multiplied by 2%. Is it Percent. 2%? And finally, if all Zero. this is not true, then what should be done? Zero. Not zero. We will say no incentive. No incentive. Yeah, inverted comma. Yeah, so we will say no incentive. So no incentive. Inverted comma. Now, how many brackets have we opened from the very One, beginning? two, three, four. Four One, is so two, four. three, four. You can see there are different colors used. Okay, so one is this, second one is this. I will just use control so that all are visible. One, two, three, and Four. four. So we have to close four brackets. So one, two, three, four. Okay. Now, if I press enter, then I should get the answer. Okay. If we have done everything in a proper way, let's see if we have done everything correct. Okay. So I'm hitting enter, and what we get is an incentive which is 327, 323.7. Okay. Now, what I will do is I will just simply Drag it. drag it. But if I drag it, will it work? It should. It should. Okay, so why it will work? Because when I drag it below, the L5 will Five switch will to become L6. 6. Yeah, 5 will become L6, 6. L7, L7, L8, and all. And whatever else the conditions are, they're all same. So it will not make any difference. So I can simply, what I can do is I can use Shift key and I can use the page down. So it is scrolling down and till the end of the sheet I can come, or I can use Control Shift down key also, but that will not. Like that. Yeah. So I will use Shift key and page down, and it's a long data. I think 800 or so. Yeah. So it has ended now. Yes, it is 600 something. 641 cells are there. So I will press Control D now. Okay. So it has pasted the answer. Now what we will do is we will just check for the solution. Okay, whether what we have done is correct or not. So what I will do is I will just remove the freeze panes
so that I can see all the values. I'm just removing the freeze pane. I'm just zooming out a little bit. Okay. And I'm just unhiding all the columns. Now, this is the actual data what we have. Okay. And we need to check whether whatever incentive we have got, what is the percentage of incentive calculated, so that we can check whether it is resonating with the profit or not. Okay, so we have got answer everywhere. So you can see that the formula is working. We have put a conditional if, or you can say a nested if, because there were multiple conditions. I will repeat it because many people have joined late. Today we started on time. So, but still, I will just repeat it for the benefit of all. But tomorrow you have to be on time. So we will calculate the percentage. Now, who will tell me how to calculate the percentage of incentive based on profit? It's very simple. M6 divided by L6, L5 rather. M5 divided by L5, and we will format the cell for percentage. Correct. So is everyone fine with this? Everyone is following what he is saying. क्या करेंगे हम लोग? M5 को डिवाइड करेंगे L6 से. ठीक है. So I will say equals to M5 divide by L6. And we will use a percentage, a format cell. Okay, now what is the shortcut key to convert the number into percentage? Any idea? I have just pressed the shortcut key, but I will not tell you. Any guesses, anyone? What is the shortcut key to convert a number into a percentage? But there is a problem here. There is a, it will give error. It will give value error wherever there are no incentive. Yes. So what should I do? Control Shift 4. No, that is not the right answer, but you are near to the right answer. Only one correction is required in the chat box. Control Shift 4. Who has written this answer? Galaxy. Control Shift 5. हाँ, अंकित ने सही पकड़ा है. कंट्रोल शिफ्ट 4 से क्या होता है वैसे? $. हाँ, करेक्ट. तो देखिए सिंपल सी बात है, जो आपके कीबोर्ड में 1 2 3 4 नंबर्स है, उसके ऊपर कुछ कीज दे रखी है. तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ वो की प्रेस करोगे तो वो जो सिंबल्स है वो आ जाते हैं. ठीक है, तो सपोज आई राइट 100 एंड आई से कंट्रोल शिफ्ट 4, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रूपी ऑटोमेटिकली. मतलब यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा. यहाँ पे ये सिंबल आ गया, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, तो ये यूरो आ गया. ठीक है, बिकॉज योर डिफॉल्ट से यूरो सेट किया होगा. अदरवाइज रुपीज है तो रुपीज आ जाएगा, डॉलर है तो डॉलर आ जाएगा. सो कंट्रोल शिफ्ट 5 इज द राइट आंसर. ओके, चलिए. नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एक ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू की जगह मुझे कुछ और चाहिए. मतलब मुझे लिखना है 0%. वैल्यू नहीं आना चाहिए, 0% ऑफ बोनस. सो व्हाट शुड आई डू? Yes, tell me. No, What can be done? So we have to go to M, and then instead of no incentive 0% in inverted comma. yes, exactly 0. Okay. So that is one way out. That is one way. ठीक है, जो आपने बोला वो एक तरीका है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि नो इंसेंटिव नहीं मिला भैया आपको इंसेंटिव. And then you want to have it in And I want to have a no value, the percentage की जगह पे So 0. it's a custom for no incentive हाँ, in custom. custom. But then I have to go to each cell and I have to custom that cell. So there is a new concept that I'm going to introduce today, and that is called as if error. Okay, a new function we will use, and that is called as if error, because since we are learning if, तो if का ही एक function और होता है जिसको बोलते हैं if error. So I've just copied this everywhere. First, let us see whether whatever we are getting as an answer is right or not. Then we will talk about this value error also. Okay. So I will just check few instances whether they are correct or not. तो सबसे पहला हम इसकी बात कर लेते हैं. ठीक है, सेंट्रल लाइन भी हो गया. अब ये वाला जो है 16,185 प्रॉफिट था,
तो प्रॉफिट का जो स्लैब है उसमें अगर लिखा, उसमें मेंशन है कि अगर प्रॉफिट 5,000 से 20,000 के बीच में है तो 2% इंसेंटिव दे दो, तो यहाँ पे 2% आगे, which is right. Then here it is less than 5,000, so there is no incentive. ठीक है, जहाँ पे 5% आ रहा है वहां पे प्रॉफिट 50,000 और 20,000 के बीच में है, ठीक है। तो do we have 10% also? Yes. So 10% is at more than 1 lakh. So the answers what I am getting is correct. And 7% is between 50 and 1 lakh. So all the answers are correct. Now what we have to look at is कि ये जो वैल्यू एरर आ रहा है उसकी जगह कुछ और आ जाए, तो कैसे होगा ये? कैसे होगा बता। एरर वाले फॉर्मूले से। हाँ, इफ एरर वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। तो ये क्या कह रहा है? वैल्यू, है ना। इफ एरर में वैल्यू मतलब इफ एरर में हम कैलकुलेशन डाल देंगे, ये कैलकुलेशन तो ऑलरेडी है, बट अगर इसका रिजल्ट एरर होता है तो आप एरर की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं बोल दूंगा नो इंसेंटिव, या इंसेंटिव लिख देंगे, या हम जीरो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं टाइप कर देता हूँ 0%, क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट कॉपी दिस एवरीवेयर नाउ, कंट्रोल D, and the job is done. Is it? Yes. जो हम चाह रहे थे वैसा हो गया। देखिए जहां जहां पे भी नो इंसेंटिव है वहां पे क्या आ रहा है? सब जगह जीरो आ रहा है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इफ एरर। Okay, now how many people want me to repeat this function basically? सर एक बार वापस रिपीट कर लो। माने अंकित? Yes, sir. Sir, if we use if error in M itself, whether it will give the same result as N? Okay, let us try that. So what I will do is I will put a if error here. Okay, and I will put everything in this bracket, and what I will do is No incentive, 0%. no incentive. To be replaced by 0%. Okay, no incentive to be replaced by zero. So why do we require a if error in that case? Then it will zero लिख सकते हैं। yeah. So if we put 0%, then there is no error. There is no error. There will be no error. Yeah. है ना? Yeah. So but in any case we can put a error. We can put this if error, everything in this if error, and this is the exact function, and then what we can write is a comma. This is the exact function. So yeah, comma, and then we can say 0. Okay, and we can close this bracket. This thing will come after this, all the brackets, I guess. Comma 0 and close the bracket. सर आपने if error लिखा है, आई थिंक वहां पे if ही आएगा। नहीं हो गया, ठीक है। तो बट इट विल नॉट मेक एनी चेंज, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसमें कुछ एरर नो नहीं है। इंसेंटिव पहले आएगा। हाँ, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ फर्क पड़ेगा। Suppose I write a over here, so it is not a number now. Okay, so by Zero, yeah. it should have given a error. It should have given a error if we did not put any if error in this formula. So instead of giving an error, it is giving us 0, right? Because I have put a after a number. Once I correct it, I will get it to it. So whenever you are writing any if formula or any formula, if you accompany it with if error, you will never get an error. Okay. Now, Ankit wants me to repeat it, so I'm repeating it. But instead of doing the nested if, I will just explain that nested if, and then we will do the same thing using if function, IFS.
Okay, so let me just open this. I'll come here. ठीक है, तो अंकित what we did I'll explain you now. ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल। सो हमने इफ से स्टार्ट करा और ये कंडीशन तो आपको पता है 5 कंडीशन थी, मतलब 5 लेयर थे चेक करने के। तो सबसे पहले हमने ये चेक करा कि L5 का अंदर जो प्रॉफिट है क्या वो 1 लाख से ज्यादा है। अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तो जो इंसेंटिव है वो प्रॉफिट का 10% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ यस तक सर। बात समझ में आ गई। तो ये क्या यस है, सर। ये लॉजिकल टेस्ट है, ये टेस्ट है और ये इसका ट्रू होने पे, ये टेस्ट जब ट्रू हो जाएगा तो इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इफ फंक्शन के बाद में क्या चाहिए होता है हमको, फॉल्स वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर ये सच ना हुआ, मतलब अगर जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से कम है तो फिर क्या होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये होता कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट है तो 10% बोनस और 1 लाख से कम प्रॉफिट है तो 5% इंसेंटिव, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता 5% और काम खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, हमको उसके बाद दूसरी लेयर चेक करनी। तो मैंने क्या करा, उसको क्लोज नहीं करा फंक्शन को, उसके अंदर बोला कि अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर एक और चेक कर लो, एक और इफ फंक्शन लगा दिया उसके अंदर। ठीक है, तो जो वैल्यू इफ फॉल्स है वहां पे हमने एक और इफ फंक्शन पुट कर दिया। तो फिर से जब इफ फंक्शन खोलेंगे तो फिर से टेस्ट होगा एक। अब जो टेस्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि L5 जो है क्या वो 50,000 से ज्यादा है, मतलब हमारा प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा है क्या। और अगर है तो प्रॉफिट इंसेंटिव कितना होना चाहिए, 7%। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ यस बोलते हो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया 7%। अब ये भी अगर सही नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट 50,000 से भी कम है, तो फिर तीसरे लेवल पे आ जाएंगे जहां हम चेक करेंगे क्या प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इफ लगाएंगे और इस बार हम इफ में लिखेंगे इफ दिस इज मोर देन 20,000। ठीक है, यस सर। और अगर ये 20,000 से ज्यादा है तो प्रॉफिट, तो इंसेंटिव कितना होना चाहिए, 5%। ठीक है। और अगर ये 20,000 से भी कम है तो फिर हम सेकेंड लास्ट कंडीशन पे आ जाएंगे कि क्या भाई 5,000 से ज्यादा है या नहीं है। अगर 5,000 से ज्यादा है तो 2% इंसेंटिव दे दो। और अगर ये सारे टेस्ट फेल हो जाते हैं हम्म। तो अब कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आखिरी में एक ही ऑप्शन बचा है, क्या, नो इंसेंटिव। सर नो इंसेंटिव की जगह अपन जीरो भी तो लिख सकते हैं। चलो अब सबको ये सब यही चाहते हैं तो मैं कर ही देता हूँ। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे जैसे न्यूमेरिकल जीरो लिख देंगे तो हाँ ये दिख जो गया। आपने परसेंटेज करा था तो वहां पे वैल्यू तो लिखी हुई आएगी नहीं। ठीक है, ये मैंने जीरो लिख दिया यहाँ पर। और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने वो इफ एरर हटा दिया था, ये नहीं हटा। नहीं सर, आपने इफ के बाद ब्रैकेट किया, वो गलत एक है मिनट, एक सबसे मिनट, ये पहले, इंसेंटिव को दिखाया। इसीलिए एरर आ रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फर्स्ट में आपने इफ के पहले ब्रैकेट लगाया। नहीं नहीं, हो गया आपसे। सर एक ब्रैकेट ज्यादा है। नहीं नहीं, नहीं, आपने नहीं। हो गया इक्वल हो के गया हो बाद, गया। एक मिनट, देखिए देखिए, देखो इफ मैंने लगाया, अच्छा इफ के बाद मैंने ब्रैकेट इक्वल के लगाया। बाद हाँ। जो ठीक है, ब्रैकेट है वो निकालना। वैसे इसकी वजह से वो एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, ये देखो आंसर आ गया, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया यहाँ से सर एक और लास्ट में से। यहाँ से भी हटा देते हैं। एक एक्स्ट्रा हो गया। तो 1 2 3 4 ब्रैकेट हमने खोले और 4 ही बंद कर दी, तो ये काम खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कॉपी करने की बात आती है, तो इसको हम कॉपी कंट्रोल सी कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के साथ नीचे आ जाऊंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। तो अब जहां जहां पे भी नो इंसेंटिव था उसकी जगह क्या आ गया, शून्य, जीरो आ गया। जीरो आ गया। ठीक है, यही चाह रहे थे तुम अंकित। सर मैं, हाँ नहीं, अब जैसे आपने परसेंटेज निकाली ना कि हाँ क्रॉस चेकिंग के लिए, हाँ। तो अब जैसे यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई आ रही थी, हम्म। तो अगर अब अपन दोबारा अब से नहीं अगर, आएगी वो, अब है नहीं ना, आएगी। अब जीरो ही आएगा लिखा हुआ वहां पे। हाँ, नहीं वहां पे जीरो ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है। नहीं, अब इफ अब यहाँ पे एरर में इफ यूज एरर की करेंगे जरूरत तो नहीं नहीं है, आएगा। अब इफ एरर की जरूरत नहीं है। अब हम क्या हाँ, करेंगे, इफ ये एरर को यही कह यहाँ रहा पे था हटा सर। देते हैं। अब और वो जो तुम सिंपल फॉर्मूले से ही हो जाएगा फिर तो। हाँ सिंपल फॉर्मूले से हो जाएगा। जी। और सिंपल फॉर्मूले में क्या रिजल्ट आएगा वो भी देख लेते हैं, जहाँ पे कि 0% है। तो देखो 0 पे 0% आ रहा है। जी। ठीक है, जी। ये इसमें इन्वर्टेड कॉमास की कब जरूरत पड़ती है? देखो इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत तब पड़ती है जब हम कोई
टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं या हम कुछ मेंशन कराना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर मुझे 0% मेंशन कराना है, 0 के साथ परसेंटेज, तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए 0% लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, विल इट वर्क? तो देखो 0 ही आया। मैंने 0% लिखा था, ठीक है। बट अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब ये 0% आया है और इसने एक एरर भी दे दी, यहाँ पे वार्निंग दी दी। और क्या लिखा हुआ है इसमें, इनकंसिस्टेंट फॉर्मूला, और यहाँ पे ये लिख रहा है दिस फॉर्मूला इन दिस सेल डिफर्स फ्रॉम द फॉर्मूलाज इन दिस एरिया ऑफ द स्प्रेडशीट। तो एक्सेल इतना स्मार्ट है कि वो कह रहा है कि देखो ऊपर जो आपने फॉर्मूले लिखे और ये जो लिखा है ना, वो इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने 0 लिखा था सिर्फ, ठीक है, और नीचे वाले में आपने 0 के आगे परसेंटेज भी लगा दिया। अच्छा, सब में ही लगा रखा है, बट ये यहाँ पे इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, इसलिए ऐसा कर रहा है। कंट्रोल डी कर देते हैं, देखो अब ये एरर हट गया। तो ये 0 इन्वर्टेड कॉमा कब आता है, उसका आंसर ये है कि जब भी हमारे को कोई वैल्यू लिखवानी है, तो हमको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा उसको, तब जाके वो उसको रीड करेगा, ठीक है। अब मैंने 0 एज इट इज लिखा और इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ, परसेंटेज को, तो नहीं ले रहा है, ठीक है। तो वो चीज है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको पूरा ही टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करके, इफ के अंदर इफ नहीं चला के, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, आईएफएस के फॉर्मूले के साथ, इफ्स, ठीक है। तो इफ्स क्या करता है, वो पूछता है लॉजिकल टेस्ट 1, सेम चीज है, मतलब कि कुछ चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं कंट्रोल जेड करूं और मैं यहाँ पर इफ की जगह आईएफएस लिख दूं, इफ्स, ठीक है, तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं होगा बेसिकली। अभी देखो ये इफ के अंदर जब हम ये लगाएंगे, चलो इतना लगाएंगे, ऊपर आईएफएस इफ के अंदर नेस्टेड इफ है, और यहाँ पे हम नीचे जो कर रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं सबको, नीचे जो कर रहे हैं वो आईएफएस वाला फॉर्मूला यूज करके बता रहा हूँ। लॉजिकल टेस्ट 1, पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है कि ये जो प्रॉफिट है ये कितने से ज्यादा है क्या, 1 लाख से, ठीक है, कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगी, L5 L6 इंटू 10%. 10%, ओके, कॉमा। अभी ये वैल्यू ऑफ फॉल्स नहीं पूछ रहा है, जो कि हमको इफ में पूछता था। अब व्हाट इज इट इज आस्किंग, इट इज आस्किंग फॉर लॉजिकल टेस्ट 2। अभी दूसरा टेस्ट बताओ, तो दूसरा टेस्ट क्या होगा, L6 ग्रेटर देन 50,000 50. है ना, एंड वैल्यू ऑफ ट्रू अगर ये सही है तो क्या होगा, L6 इंटू 7%. 7%. 7%, ठीक है। नाउ यू विल टेल मी थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, L6 greater than 20. ग्रेटर देन 20. 20, and if this is true then L6 into 5. 5%, comma, next L6 greater than 5%, 5,000. and this is true then L6 into 2%. 2%, comma, now what, Only one bracket. नहीं ये कंडीशन सारी 0. खत्म हो गई ना, 0. कंडीशन सारी खत्म हो गई। No incentive. No incentive. Into हाँ, तो inverted. सिंपली यू विल राइट डाउन नो इंसेंटिव, ठीक है, और 0%, 0 लिख दो, फिर लड़ाई करेंगे यहाँ पर कि 0, ठीक है। ये टू मेनी आर्गुमेंट्स आ गए, 1 मिनट। सो इफ, ओके, वी विल जस्ट क्लोज इट, हाउ इट इज गेटिंग द आंसर, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, जहाँ पे 0, जहाँ पे मतलब इंसेंटिव नहीं मिल रहा था, वहां पे देखते हैं क्या करता है, ठीक है। तो इट हैज गिवन अ NA, ठीक है, मतलब इफ्स वाले ने क्या किया यहाँ पर कि कंडीशंस पूछता गया और रिजल्ट देता गया, ठीक है। और इसके बाद भी हम बोलेंगे तो बोलेगा लॉजिकल टेस्ट 5 और वैल्यू ऑफ ट्रू, ठीक है। अब मेरे पास और कोई टेस्ट तो बचा नहीं है, और टेस्ट कर सकते हैं ना, वैसे हम क्या करेंगे, L8 लेस देन 5,000, ठीक है, Then comma, 0.
देन यहाँ पे लिख देंगे 0, और उसमें 0 ही चाहिए तो फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। नहीं, अभी आगे देखो आंसर 0, और ये एरर क्या है, वही वाला ऊपर आने वाले से अलग है, ठीक है। इसको कॉपी कर दो नीचे तक, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा ये ज्यादा अच्छा है। इफ्स अच्छा है। है? इफ्स अच्छा है, ऑब्वियसली जो भी अपडेट आता है वो बेटर ही होता है पिछले वाले से, तभी वो अपडेट है, ठीक है ना। तो ये आपको दोनों फंक्शंस मैंने सिखा दिए, यू कैन प्रैक्टिस इट, आई विल गिव यू सम मोर असाइनमेंट्स ऑन इट, ठीक है। तो ये हमने किया था इनवाइटेड नॉट इनवाइटेड वाला, और ये हमने वो एक फंक्शन कर लिया है, ठीक है। मुझे एक चीज ये और, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं या मतलब कुछ डिफरेंशिएशन है इन दोनों में, नहीं कोई नेस्टेड डिफरेंस इफ और इफ्स में? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस इज दैट इफ सम फंक्शन विल नॉट वर्क इफ यू डू नॉट हैव 365, मतलब if you are using any excel which is less than 2016 19 or 365, it will not work probably, मतलब 2010 और 13 में तो नहीं चलेगा, और as such कोई चेंज नहीं है, बट फॉर्मेशन चेंज किया है इन्होंने, नथिंग एल्स। मतलब if you check YouTube all the videos, they say that if nested if and if is almost same, just the structure has changed. So that the number of brackets are not required to be Number of counted in bracket the is not function. required, and then you don't have to write the conditions, and So sometime error may happen there. error may happen, right? And you sometimes you might forget to put a if, मतलब तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। दिस इज सिंपलर, मतलब ये बहुत सिंपल है। No Then need to only write these 4 conditions, that's text. why we have to suppose 10 condition, then it becomes very cumbersome. Yes, you're right. So you can calculate the income tax also if we have to use in our CA profession. Yes, You can calculate income tax using this IFS formula. Yeah, slab by So I think I have one Excel sheet where this income tax calculator is there. I will just open and show it to you. एक मिनट में देख लेता हूँ। कल ही I was exploring and I got this tax calculator. So if I can find it, I will show it to you right now. Yes, I have got this. So I'm sharing my screen, and this is going to be interesting. Can you see this Excel? Yes, sir. So it is saying that tax deduction calculation for employees, ठीक है, डिडक्शन रेट। तो ये बोल रहा है अगर 2.5 लाख से कम का इनकम है तो कुछ भी डिडक्ट मत करो, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो 10%, 5 लाख से 10 लाख होना चाहिए ये, 10 लाख के बीच में है तो 20, और 10 लाख से ऊपर है तो 30, ठीक है। मतलब ये इनकम टैक्स का स्लैब है बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इज द सैलरी per month of an employee. Now we have to fill this Excel. Shall we do it together? Yes, sir. Yes. Okay. I will just zoom in so that people can see our answer. Zoom होगा। अभी I think it is visible properly. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now, first thing is that total salary per annum. How do I calculate the total salary per annum? Multiply by D9 multiplied by 12. D9 multiplied by 12 and control shift and control shift and control D. Sorry. Sir, instead of that, you double click on the right corner. हाँ exactly. I don't use mouse much, तो वो भी है एक वैसे। Doing 2-3 functions through keyboard instead of. हाँ right. If there is some data on left column, then it will automatically. If the data is on left column, Then till that last data, it will get. okay, right. So now we have got monthly salary, we have got annual salary. Okay, what is the shortcut key to remove the decimal point? ये अचानक से out of the course question के साथ।
shortcut key is out of syllabus. And I spent 10 days on shortcut key. Almost 7 days. Starting classes were only on shortcut keys. And luckily I also don't remember it now. I think it was control shift or 09 something was there. I will have to check myself. खुद को भी देखना पड़ेगा because 0 control H0 control alt 0 या नहीं, इससे तो नहीं हो रहा है बट वी विल सी, मतलब आप लोग देख लेना, बता देना मुझे व्हाट्सएप पर. सो वी हैव रिमूव्ड द जीरो. नाउ टेक्स्ट कैलकुलेशन. ठीक है. सो नाउ हाउ वी डू इट. इफ फंक्शन लगाएं. यस सर. चलो स्टार्ट करते हैं. आईएफएस लगाएंगे या नेस्टेड इफ लगाएंगे. IFS करता है. चलिए. सो दिस इज द टोटल सैलरी. ठीक है. सबसे पहले ग्रेटर देन 250. 250. अगर 2,50,000 से ज्यादा है तो 10%. 10%. एक काम करते हैं, जो लोग सीए नहीं है वो लोग बोलेंगे कि सर हमारे देखना को तो पड़ेगा. बता दो, दिखा दो, तो इसको कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट कर देते हैं इसके सामने. So these are the tax slab now. Okay. So now what we will do is we will calculate the tax. तो यहाँ पे हम करेंगे if function use करेंगे logical test 1. So this if this is greater than 2.5 2,50,000, तो फिर क्या होना चाहिए. 10%. एक्चुअली सर अपने को ये उल्टा होगा, ऐसा नहीं चलेगा. हाँ लेस देन चलेगा. We have to start. No, there are two ways. We can start with more than 10 lakhs. मतलब ऊपर से वो नीचे होते हुए आए. हाँ. फिर नीचे से ऊपर चलें. तो I will like suggest you that you use ऊपर से नीचे वाला स्लैब. ठीक है. और यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं. वो क्या. Suppose if I start with less than, then also it will work. चलो Less we than start with 250, then 0, less than 5, then 10%. okay. So we will do that. ठीक है. But I am suggesting one more thing. जो आप कह रहे हैं वो कर लेते हैं, लेकिन मैं कुछ और भी सजेस्ट कर रहा हूँ. मैंने ये जो स्लैब्स है ना ये यहाँ लिख दिए हैं. ठीक है. कंट्रोल शिफ्ट 4 कर देते हैं. इसको ये नंबर रुपी सिंबल हटा रहा हूँ अभी मैं. जस्ट कन्वर्टिंग नंबर नॉर्मल एंड देन आई एम पुटिंग द परसेंटेज. ठीक है. इधर okay. So now I am putting everything in rupee. Oh, sorry, not rupee, but I am putting the slabs and percentage. So 30 इधर 20 और इधर 10. और अगर ये लेस देन 250 है तो 0. ठीक है. तो अब 24,999 लिख देता हूँ. बेसिकली 0 1 2 24,999. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज. नाउ ये सब मैंने क्यों लिखा है मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि व्हाट आई intend to do with this. So now we will start using the formula IFS, and you want to use the less than sign. Okay. So this salary I will take less than. हाँ बताइए. Less than 250, 0. Less than 250, 0. 0. So instead of writing this 250, what I will do is I will use this reference. Okay. So I'm using this reference. So if it is less than 250 comma, then it should be 0. So I'm using this reference. Okay. Comma. Then second test. Then C9 again. If it is less than I50. Less than 50, 5 lakh. I50. 5 lakh. I50. Or 250. 5 lakh. 5 lakhs. 5 lakh. Okay. If it is less than 5 lakh, then the rate of interest, this tax should be 20%. 10%. Sorry, not 10%. 10%. Comma. Then C9 less than
10 lakh. 20%. Then it should be C9 into 20. अच्छा आई हैव नॉट मल्टीप्लाइड C9. चलो एक काम करते हैं, अभी सिर्फ रेट निकाल लेते हैं, ठीक है, कि क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा, तो वैसा हाँ। बता दिए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है. तो इट शुड बी 20% एंड कॉमा वन मोर. More than 20, 10 lakh 1,000. तो अभी मोर देन करना पड़ेगा फिर लास्ट में 30 के लिए. Yes, sir. अभी हम लेस देन चला रहे हैं यहाँ पर. नहीं, और एल्स 30% सीधा लास्ट में आ जाए. नहीं वो लेकिन आईएफएस वाले फंक्शन में सीधा वाला ऑप्शन नहीं है. नहीं चलेगा. ओके. तो C9 greater than this 10 lakh, then it should be 30. 30%. Close the bracket. It is coming in rupees, but I will correct it to percentage. So control shift और 5. ये 2000 आ गया है. एक मिनट, इसको नंबर करते हैं, यहाँ से हटाते हैं. Now you simply drag, double click, and it is not giving the answer because Sir, No. referencing cell is have to be. yes, सेल रेफरेंस चेंज हो गया. Yes, ठीक है, sir. तो अभी सब में रेफरेंस लगा दूं क्या, ब्लॉक कर दूं सबको ही? नहीं, C9 को नहीं लगाना पड़ेगा. को नहीं को लॉक करेंगे. हाँ, बाकी सब जगह लगाना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, सब पे लगा तो देते हैं, फिर C9 से हटा देंगे. So I am selecting all and then putting F4. So it has given a dollar to everyone. Now I am in the formula bar. I am removing the dollar from C9. जहाँ पे भी डॉलर्स है वहां पे हटा रहे हैं. हटाने का तरीका क्या होता है? F4 को 3 बार दबाना है. Again F4. You have to press F4 3 times because it will do one by one. Yes, 3 times you have to press. 1 2 3. हो गया सब जगह से रिमूव. Yes, sir. And now we will drag it, or we can say double click. And now we will check whether the answer is correct or not. So if it is between, if it is 5,40,000, it is 20%. If it is more than 5 and less than 10, then is 20. तो ये सही है. 1,02,50 से कम है तो 0 आ रहा है. 250 और 5 लाख के बीच में तो 10 आ रहा है, और 250 और 5 लाख के बीच में तो 10 आ रहा है, और 10 लाख के ऊपर है तो 30 आ रहा है. मतलब ये सही है, right? Yes, sir. But we don't want this as a result. We want the tax. So what we will do, we'll multiply this by this. So we will have to insert one more column that will say total tax. And what you have to do, you have to this multiply by, and we will convert this into a percentage sign now. Control Shift 5. Okay, you will just say. क्या issue है इसको यार? अच्छा हमने इसको वैसे लिखा है ना, तो ये परसेंटेज का सिंबल लगेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, बट इसको मान लेते हैं कि ये परसेंटेज ही है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज अगर लगाना है तो मुझे फिर डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा. 100 करना पड़ेगा. हाँ चलो ये कर दिया है, अब इसको पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, चलो. Now you can say this multiply by this, and here is the answer for total tax. We can just drag it down, and tax per month के लिए इसको divide by 12 कर देंगे. We will You divide can this. directly get also without calculating total tax. हाँ Per month we can directly calculate. We have inserted our total tax, but then we can calculate directly tax per month how? without by putting this C9 multiplied by D. Divide by 12. Yeah, divided by 12. Yeah, exactly. But Right. actually, the If idea at all was to get not the total required, tax also. total tax is not required. Yes, yes. Yeah, that is true. We can directly get it, but yeah, we are doing it like this, and now it is giving me some weird answer because it is coming to percentage. So we will change this format to number, and now it is fine. Okay. So this is a tax per month,
and salary after deduction. So what we will do is annual salary minus, B minus F. but no, it should be yes B, monthly salary, B9 minus F9. हाँ श्वेता है नहीं क्या क्लास में? Yes, sir. बोल नहीं रही है। तो ये समझा सबको? सर आप जो बोल रहे थे उसमें सब लेस देन करना, मतलब ग्रेटर देन करना पड़ता है, इसमें लेस देन और हाँ, ये आपने लेस देन वाला बताया, हाँ। मैं तो बता रहा था उसमें सबको ग्रेटर देन करना था। हाँ, सबको ग्रेटर देन करते तो हो जाता, हाँ, सबको ग्रेटर देन करते तो हो जाता, वो भी एक तरीका था। बट 10 लाख से चालू करना पड़ता। हाँ, 10 लाख से चालू करना पड़ता है, 10 लाख और 30%, फिर 5 लाख और 20%, फिर 2.5 लाख और 10% और 2.5 से कम पे 0। वो अपने आप हो जाता। हाँ, वो अपने आप हो जाता है, करेक्ट। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट द वे वी कैलकुलेट टैक्स बेसिकली। ऐसा थोड़ा ना होता है टैक्स कैलकुलेशन, ऐसा ही होता है क्या? If it is a net income, then is the way, मतलब मैन्युअली एक्सेल में गिनना है तो जी तो हाँ हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली यस, सो करेक्ट. So if someone is earning 14,40,000, that the tax should be 4,32. But there is one element which is missing here. What is that? Education says 4%. यस, ठीक है, तो अगर मान लो मुझे टोटल टैक्स में वो एजुकेशन सेस भी ऐड करना है, तो आई विल इंक्रीज द रेट इटसेल्फ because it is same across all rates. हाँ, तो what you can do is you can add these rates, you can increase by 1.04. So you can multiply all these rates by 1.0. and how to do that? ये सारे को अगर मेरे को 1.04 से मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे होगा? ये मैंने बता रखा है वैसे ये क्लास में, बट डू यू रिमेम्बर और नॉट? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। श्वेता? Yes, sir. सर वो फ्रीज कर देंगे और इनटू कर देंगे। है क्या क्या फ्रीज? क्या पूछ रहे हो आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जो 1.04 है इसको मुझे इन सब से मल्टीप्लाई करना है। तुम जो बोल रही हो वो सही अप्रोच है, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं करना चाहता। हिंट दे देता हूँ, पेस्ट स्पेशल काम में लेंगे। ट्रांस चलो मैं करके ही बताता हूँ। सो व्हाट वी विल डू इज, अमित आपको याद है? अमित, अंकित, इस ट्रांसपोज नहीं ट्रांसपोज नहीं है। देखो क्या होगा, whenever you want to apply any operation on any cell, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस जो कंटेंट कॉपी करके दूसरे पे अप्लाई करना है उसको कॉपी कर लो पहले, फिर आपको करना है Alt H V, उससे पेस्ट स्पेशल खुल जाएगा, Alt H V, और नीचे नीचे आपको दिखेगा पेस्ट स्पेशल, दिख रहा है? यस सर। तो S दबा देंगे और S दबाने के बाद आपको पेस्ट दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है ऑपरेशन मल्टीप्लाई, यस सर, यस सर। और इसी के साथ ये टैक्स कैलकुलेशन तो हो गया 0 सब में। ये क्यों हुआ? परसेंटेज लगा हुआ था इसलिए सर। क्या लगा हुआ था? परसेंटेज। अच्छा इसमें ओके। यहाँ क्यों 0 हो गया सब? ये तो क्या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता हुई? जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जो समझ में आया था मैं तो वो और भूल गया। किसी ने अपने दिल की बात बोल दी। श्वेता तो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि अंकित ने कर हाँ। कंट्रोल जेड कर लेते। एक्सेल की लैंग्वेज में ही बात करनी है तो कंट्रोल जेड कर भी दिया मैंने। अंकित सही था ये, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। अरे इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब क्या है कि 4% जोड़ना था तो उन्होंने कहा कि चलो 4% इसमें ही बढ़ा देते हैं। अभी मैंने कहा चलो बढ़ा रहे हैं तो ठीक है,
लेकिन ये सब क्या है, ये जो परसेंटेज आया ना यहाँ पे कैलकुलेशन होके, वो यहीं से तो वैल्यू उठाई है इसने, है ना। तो जब हमने यहाँ पे वैल्यूज चेंज करी तो यहाँ पे भी चेंज हो जाना चाहिए था। सपोज मैं 30 की जगह अगर यहाँ पे हम करते हैं 30 इंटू 1.04, तो इट इज 31.2, तो मैं 31.2 लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आ गया ना यहाँ पर। वो आई थिंक परसेंटेज में होने के कारण नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गया। चलो अंकित, अब इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंपल कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे और जो ही श्वेता ने पहले बताया था उसको काम में ले लेते हैं। एक्चुअली क्या, मेरे को कॉम्प्लिकेट करने की आदत हो गई चीजों, मतलब एक्स्ट्रा समझाने की। वो पता नहीं थोड़े टाइम से ऐसा हो गया है, जब से मैं पढ़ाने लग गया हूँ सभी को, तो मैं अपना दायरा भूल जाता हूँ। Anyways, तो ये क्या करा मैंने, यहाँ पर 30 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसा श्वेता ने बताया था 1.4 को क्या कर दिया हमने, फ्रीज। श्वेता ये कह रही थी ना तुम? यस सर। ठीक है, तो ये फ्रीज कर दिया, इसको हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और 4 के 5 के साथ में, और इसके शून्य बढ़ा देते हैं, तो ये है। अब इसको मैं कॉपी करूंगा और पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज करूंगा पेस्ट। अंकित, ये तो तुमने अटेंड किया था ना, तो तुमको ऐसे दिक्कत क्यों आ रही है? जब दिक्कत के वो इतनी सारी चीजें हो गई ना, तो खिचड़ी टाइप हो गया। पहले से ही चल रहा था, फिर पता नहीं ये 4% सेस कहाँ से आ गया। वो मैथड ने लाया, सीतारमन ने लगाया इनकम टैक्स के अंदर। अभी तो उसके बाद सरचार्ज भी है सर। तो उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम। चलिए एनीवेज, तो अभी एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके मैं ये कहाँ पे पेस्ट करना चाह रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ। पेस्ट स्पेशल है ना, वांट टू पेस्ट वैल्यूज, जीरो क्यों हो रहा है ये? नहीं सर, वो परसेंटेज है और आप इधर कर रहे हैं तो 0.31 हो जाता है, इसीलिए जीरो हो जाता अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। है। वहां आपने फॉर्मेट परसेंटेज में किया। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज। एल इज इन परसेंटेज, ओके ओके। तो वहां पे 0.32 जीरो ले लेते हम्म, now if I copy it into number, अभी आ गया, करेक्ट। बट यहाँ पे चेंज हो गया, चलो इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, यहीं भी छोड़ देते हैं, ये सेस वाला सब अपने घर पे करेंगे। चलो अंकित, अब ठीक है। सर वो तो अच्छा हुआ यहाँ पे 1 CR से ऊपर नहीं है कोई भी। नहीं, वो इलस्ट्रेशन बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। और आप जैसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं जो पूछ ले कि सर 1 CR से ऊपर होगा तो कैसे करेंगे, फिर उसको बोलेगा कि चलो क्लास के बाद बात करना अलग से। चलो, तो ये हमने टैक्स कैलकुलेशन भी देख लिया, तो इफ फंक्शन तो आई थिंक आप सबको अच्छे से आ जाएगा, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस और कर सकते हैं। आई विल शेयर दिस शीट अगेन। ठीक है, अभी इसको मैंने बंद कर दिया। अभी एक चीज और मुझे बतानी, जो मैंने सोची थी, बट 10 बज गए हैं, तो आप लोग बताएंगे कि आगे बढ़ना है या यहीं रुकना है। मतलब रुकना है, मतलब मतलब इतने ही रुक जाना है ऐसे। हाँ, मतलब कि और कुछ पढ़ने की इच्छा है क्या? नहीं सर। मतलब नहीं आज की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, आज की सर आज आपने पराग सर, सर बिल्कुल फ्री लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल फ्री मूड में है। आई एम ऑलवेज फ्री मैडम। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फ्री मूड में लग रहे हैं सर आज आप। नहीं, वो उनका आज उनका नींद नहीं आ रही है मेरे को, बस उनका अच्छा। उनका उनका रहस्य मुझे पता है, वो इतने फ्री कैसे रहते हैं वो। हाँ, वो मैंने सीक्रेट बताया था ना सर आप। आई नो हिज सीक्रेट। और वो ही लकी इनफ कि वो सीक्रेट उनके आई एम पास। ऑलवेज अवेलेबल, आई एम ऑलवेज फ्री, आई एम ऑलवेज। सर आई ऑल्सो नो Yeah, because you we are also on know. his You were there. Yeah, you were field. there at there. So you also know. I know.
तो बाकी लोग बोलेंगे सीए मिलके पता नहीं क्या सीख रहे खिचड़ी पका रहे। एनीवे चलो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, देन वी विल क्लोज द सेशन इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो अच्छा, वी विल डिस्कस द वे फॉरवर्ड, ठीक है? आगे हम कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मेरी इच्छा होती है जब भी मैं कुछ करा देता हूँ, बट कोई बोलता नहीं है, तो दैट इज सर वेरी। प्लीज प्रैक्टिस शीट भेज देना। हाँ हाँ, वो मैं भेज देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि कल एक्सेल वो व्हाट्सएप ग्रुप चल नहीं रहा था मेरा, है ना? अभी मैं तुरंत अभी डाल देता हूँ, फिर भूल जाऊंगा, फिर तुम मुझे याद दिलाओगे ऑफिस में। तो अभी मैं आई विल जस्ट पुट इट, और मैं आपको सारी एक्सेल ही भेज देता हूँ एक बार में, तो ये काम खत्म होगा। सर वो कल वाली भी सेंड कर देना। हाँ कल वाली, और कल वाली रिकॉर्डिंग भी मैंने डाउनलोड कर दी है, उसको अपलोड पे भी लगा दिया है, तो आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग्स आल्सो, ठीक है? एक बार एक सर जगह एक कोई काम कर सकता है कि जो मैंने एक एक्सेल में सारी रिकॉर्डिंग्स पुरानी डाली थी, है ना, और वो ग्रुप में शेयर किया था, इफ समवन हैज दैट लिंक, तो वापस से डाल दो आप लोग ग्रुप में, है ना? पुराने चैट्स अगर किसी के पास है तो मिल जाएगा। एक पीडीएफ भी डाला था और एक एक्सेल भी डाला था, जिसमें सारे लिंक्स थे रिकॉर्डिंग के, देयर वर 10-12 रिकॉर्डिंग्स व्हिच आई सेंड। तो अगर वो किसी को मिले तो अपने कृपा एक्सेल करके, कोर्स वाले में डाला था जो यही वाला ग्रुप है ना, एक्सेल कोर्स वाला जो ग्रुप है, उसी कोर्स में डाला वाला है, में। ठीक है? नाउ आई विल शो यू व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू विथ यू ऑल नेक्स्ट, और आप लोग मुझे बता भी देना कि क्या हो गया, बिकॉज आई एम टेकिंग सो मेनी बैचेस, मुझे सीरियसली आई एम लूजिंग ट्रैक ऑफ व्हाट आई एम डूइंग इन व्हिच बैच, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल भी चल रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। एंड मैंने एक सिलेबस का एक्सेल बनाया था, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट एक्सेल एंड देन काम करते हैं,